حویلی لیف شاہ دہلی گیٹ سے شہدائے کربلا کے چہلم کا مرکزی جلوس اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا منزل کے جانب گامزن۔ جلوس میں شامل زائرین کے لیے جگہ جگہ ٹھنڈے مشروبات کا اہتمام۔ مرکزی جلوس کے راستوں پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات۔ حساس علاقوں میں چھتوں پر سنائپرز بھی تعینات کیے گئے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں عبدالرحمان سے۔ عبدالرحمان، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، حویلی علی شاہ دہلی گیٹ لاہور سے نکلنے والا چہلم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرکزی جلوس اپنے مرکزی قدیمی روایتی راستوں سے ہوتا ہوا کربلا گام شاہ کی طرف رواں دواں ہے۔ چند گھنٹوں بعد یہ جلوس کربلا گام شاہ میں اختتام پذیر ہوگا۔ جلوس کے جتنے بھی راستے ہیں، خاص طور پر جو حساس راستے ہیں، ان کو پنجاب پولیس کی جانب سے، رینجرز کی جانب سے اور حساس اداروں کی جانب سے مکمل طور پر حصار میں لیا گیا ہے اور سخت سیکیورٹی کے انتظامات کیے گئے ہیں۔ 5000 سے زائد پنجاب پولیس کے جو اہلکار ہیں وہ سیکیورٹی کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ جلوس کے وہ تمام راستے جن میں جلوس میں شرکا شامل ہیں یا جنہوں نے شرکا نے گزر کر گام شاہ کی طرف آنا ہے، ٹھنڈے پانی کے مشروبات کی سبیلیں لگائی گئی ہیں تاکہ سخت گرمی اور حبس کی وجہ سے کسی کو بھی کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہ ہو سکے۔ جو ابتدائی اطلاعات کے مطابق یہ جلوس تقریباً 10:30 سے 11 بجے کے درمیان کربلا گام شاہ میں اختتام پذیر ہوگا۔ جی شکریہ عبدالرحمان۔ لاہور میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہلم عقیدت و احترام سے منایا گیا۔ چہلم کے مرکزی جلوس کے راستوں پر جگہ جگہ سبیلوں کا اہتمام بھی کیا گیا۔ عزادار حبس کے موسم میں شربت اور پانی پی کر اپنی پیاس بجھاتے رہے۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ شہر لاہور میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے چہلم کے موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے۔ جلوسوں کے راستوں پر ٹھنڈے پانی کی سبیلوں کا اہتمام کیا گیا۔ شہر میں جگہ جگہ پانی اور مشروبات کی سبیلوں سے عزادار فیضیاب ہوتے دکھائی دیے۔ سبیل لگانے والوں کا کہنا تھا کہ شہداء کربلا کی یاد میں اور انہیں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے سبیل کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ ہر سال ہی عزاداروں کے لیے سبیلیں لگائی جاتی ہیں۔ اس سبیل لگانے کا مقصد جو ہے وہ جو کربلا میں تشنہ لب بچے پیاسے رہ گئے اور امام حسین علیہ السلام کی یاد میں اور کربلا کی یاد میں باہر سے مسافر آتے ہیں، ان کے لیے ایک سادہ پانی مل جانا ہی بہت زیادہ ہے۔ شہداء کربلا کی یاد میں لگائی گئی سبیلوں سے عزاداروں کی کثیر تعداد مستفید ہوئی۔ ریجنل ٹیکس آفس لاہور زون 1 میں بڑے پیمانے پر افسران اور عملے کے تقرر و تبادلے کر دیے گئے۔ 80 سے زائد ملازمین کی تعیناتیاں اور تبدیلیاں کی گئیں۔ پوسٹنگ میں UDC LDC سپروائزر، سپاہی، دفتری عملہ اور دیگر عملہ شامل۔ مختلف ریجنز اور یونٹس کے درمیان تبادلوں کا مقصد انتظامی امور میں بہتری لانا ہے۔ مزید جانتے ہیں محمد علی سے۔ محمد علی، آگاہ کیجیے گا۔ محمد علی سے ہمارا رابطہ منقطع ہو چکا ہے۔ آپ کو بتائیں، ریجنل ٹیکس آفس لاہور زون 1 میں بڑے پیمانے پر افسران اور عملے کے تقرر و تبادلے کر دیے گئے۔ 80 سے زائد ملازمین کی تعیناتیاں اور تبدیلیاں کی گئیں۔ پوسٹنگز میں UDC LDC سپروائزر، سپاہی، دفتری عملہ اور دیگر عملہ شامل۔ مختلف ریجنز اور یونٹس کے درمیان تبادلوں کا مقصد انتظامی امور میں بہتری لانا ہے۔ آپ کو ایک دفعہ پھر اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ ریجنل ٹیکس آفس لاہور زون 1 میں بڑے پیمانے پر افسران عملے کے تقرر و تبادلے کر دیے گئے۔ 80 سے زائد ملازمین کی تعیناتیاں اور تبدیلیاں کی گئیں۔ پوسٹنگز میں UDC LDC سپروائزر، سپاہی، دفتری عملہ اور دیگر عملہ شامل ہے۔ مختلف ریجنز کے اور یونٹس کے درمیان تبادلوں کا مقصد انتظامی امور میں بہتری لانا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا ہے کہ صاف پانی کی عدم دستیابی کی عوامی شکایات کا ازالہ کیا جائے گا۔ ترقیاتی منصوبوں کی ٹائم لائن اور تعمیراتی معیار کو مد نظر رکھنا بے حد ضروری ہے۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی زیر صدارت خصوصی اجلاس صاف پانی، واٹر فلٹریشن پلانٹ اور دیگر ترقیاتی امور زیر بحث آئے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کو مثالی گاؤں پروجیکٹ پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ اجلاس میں لاہور ڈیولپمنٹ پروجیکٹ اور پنجاب ڈیولپمنٹ پروجیکٹ پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں دور دراز علاقوں کے لیے واٹر پمپس لگانے کی تجویز کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے واٹر فلٹریشن پلانٹ کے حوالے سے 30
جون 2026 کو ڈیڈ لائن دے دی۔ لاہور ڈیولپمنٹ پروجیکٹ میں گلیوں کی تعمیر و مرمت جلد مکمل کرنے پر زور۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے بعض منصوبوں کی تکمیل بروقت نہ ہونے پر ناپسندیدگی کا اظہار کیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے پنجاب کے ہر شہر میں بیوٹیفیکیشن کے 122 منصوبوں کا بھی جائزہ لیا۔ لاہور ڈویژن میں 51، راولپنڈی میں 64، فیصل آباد میں 37، ملتان میں بیوٹیفیکیشن کے 75 منصوبے مکمل کیے جائیں گے۔ سرگودا میں 45، گجرانوالہ میں 64، ڈی جی خان میں 51، بہاولپور میں 61، گجرات میں 53 اور ساہیوال میں 49 منصوبے مکمل ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا کہ صاف پانی کی عدم دستیابی کی عوامی شکایات کا ازالہ کیا جائے گا۔ واٹر فلٹریشن پلانٹس کی تعمیر و مرمت اور بحالی کے لیے باقاعدہ سسٹم وضع کیا جائے۔ ترقیاتی منصوبوں کی ٹائم لائن اور تعمیراتی معیار کو مد نظر رکھنا بے حد ضروری ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا ایک اور اعزاز، جاپان گورنمنٹ کی خصوصی دعوت۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز 5 روزہ سرکاری دورے پر جاپان چلی گئیں۔ وزیر اعلیٰ کا دورہ جاپان پنجاب میں سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے اہم قرار دیا جا رہا ہے۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ جاپانی حکومت کی خصوصی دعوت۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز 5 روزہ سرکاری دورے پر جاپان چلی گئیں۔ لاہور ایئرپورٹ پر اعلیٰ حکام نے وزیر اعلیٰ اور وفد کو رخصت کیا۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب، وزیر اطلاعات اسما بخاری، صوبائی وزراء ملک صہیب برت، ذیشان رفیق، معاون خصوصی ثانیہ عاشق اور اعلیٰ سرکاری افسران بھی وفد میں شامل ہیں۔ مریم نواز جاپان کا سرکاری دورہ کرنے والی پہلی وزیر اعلیٰ ہیں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز ٹوکیو، اوساکا اور یاکوہاما جائیں گی۔ جاپان کے اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں، مختلف اداروں کے وزٹ اور اوساکا ورلڈ ایکسپو میں شرکت کریں گی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا دورہ جاپان پنجاب میں سرمایہ کاری کے فروغ اور اقتصادی تعلقات کی مضبوطی کے لیے اہم قرار دیا جا رہا ہے۔ ڈائریکٹر نیب لاہور عمران سہیل کہتے ہیں چند لوگوں کی بدعنوانی کی قیمت پورے معاشرے کو چکانا پڑتی ہے۔ نئی نسل میں بدعنوانی کے خلاف شمع روشن کرنا ہوگی۔ گورنمنٹ گریجویٹ کالج بریک خواتین کا وفد کا نیب لاہور بیورو کا مطالعاتی دورہ۔ ڈائریکٹر نیب عمران سہیل کی وفد کو نیب کی ورکنگ پر بریفنگ، بیورو کا دورہ بھی کرایا گیا۔ کرپشن کے موضوع پر طلباء کی جانب سے بنائی گئی ڈاکومنٹری بھی دکھائی گئی۔ ڈائریکٹر نیب لاہور کا وفد سے گفتگو میں کہنا تھا، پاکستان کی خوش قسمتی ہے کہ یہاں نوجوانوں کا تناسب دنیا میں سب سے زیادہ ہے۔ مطالعاتی دورے کے نگران اساتذہ نے قومی اداروں اور عوام کے درمیان فاصلہ کم کرنے کو وقت کی اہم ضرورت قرار دیا۔ اس موقع پر طالبات کا کہنا تھا، ملک کی دفاع اور اسے کرپشن سے پاک کرنے میں نوجوان قومی اداروں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ پنجاب بھر میں 24 گھنٹوں کے دوران 1727 حادثات پر ریسکیو سروسز فراہم کی گئیں۔ ترجمان ریسکیو کے مطابق صوبے میں حادثات کے دوران 10 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ سب سے زیادہ 299 حادثات لاہور میں ہوئے۔ 136 شدید زخمیوں کو فوری ہسپتال منتقل کیا گیا۔ آپ کو افسوسناک خبر بارے اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ پنجاب بھر میں 24 گھنٹوں کے دوران 1727 حادثات پر ریسکیو سروسز فراہم کی گئی ہیں۔ ترجمان ریسکیو کے مطابق صوبے میں حادثات کے دوران 10 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ مدثر سے تفصیلات جان لیتے ہیں۔ جو مدثر آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، لاہور سمیت پنجاب بھر میں ٹریفک حادثات کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران لاہور سمیت پنجاب بھر میں 1727 ٹریفک حادثات رپورٹ ہوئے ہیں اور ان ٹریفک حادثات میں 10 افراد جو ہیں وہ جان کی بازی ہار گئے ہیں، جبکہ 936 افراد ان ٹریفک حادثات میں زخمی بھی ہوئے ہیں۔ پنجاب بھر میں سب سے زیادہ روڈ ٹریفک حادثات 299 لاہور میں رپورٹ ہوئے، ملتان میں 117 ٹریفک حادثات رپورٹ ہوئے اور فیصل آباد میں 114 ٹریفک حادثات رپورٹ ہوئے۔ ان ٹریفک حادثات میں زخمی ہونے والوں میں 1762 مرد اور 390 خواتین شامل ہیں۔ 1727 حادثات میں 1822 موٹر سائیکل سوار جو ہیں وہ ٹریفک حادثات کا شکار ہوئے۔ 103 رکشے جو ہیں وہ موٹر سائیکل حادثہ جو ہے وہ ٹریفک حادثات کا شکار ہوئے۔ 174 گاڑیاں ٹریفک حادثات کا جو ہے وہ شکار ہوئی۔ لاہور میں سب سے زیادہ 24 گھنٹوں میں 299 ٹریفک حادثات رپورٹ ہوئے اور اس میں 136 افراد جو ہیں وہ شدید زخمی ہوئے، جن کو لاہور کے گنگا رام اسپتال، میو اسپتال، جنرل اسپتال، جنرل اسپتال میں دیگر اسپتالوں میں جو ہے وہ منتقل کیا گیا ہے، جہاں ان کا علاج جو ہے وہ جاری ہے۔ ان حادثات میں 251 افراد جو تھے وہ معمولی بھی زخمی ہوئے، جن کو موقع پر بھی فرسٹ ایڈ جو ہے وہ طبی امداد دے کر گھروں کو منتقل کیا گیا۔ اگر دیکھا جائے تو ٹریفک پولیس کی طرف سے جو ہے وہ آگاہی مہم اور ہیلمٹ بندی کے باوجود جو ہے وہ ٹریفک حادثات کے نہ رکنے والا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے، بلکہ آئے روز اس میں اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ جی حضرت عثمان بن علی حجویری رحمۃ اللہ کے 982ویں سالانہ عرس کی تقریبات کا آخری روز۔ پاکستان بھر سے زائرین کا رش لگ گیا۔ پولیس نے ناکہ بندی پر سختی کر دی۔ زائرین کو پیدل پہنچنے میں پریشانی کا سامنا۔ تفصیلات جانتے ہیں محمد علی سے۔ جو محمد علی آگاہ کیجیے گا۔
जी, रावी किनारे दाता की नगरी में 982वें उर्स की तकरीबात का आज आखिरी रोज़ है। सूबाई वज़ीर औक़ाफ़ शाफ़ी हुसैन ने अभी यहाँ पे दौरा किया। उन्होंने लंगर खाने बिलखुसूस दरबार की हदूद और सिक्योरिटी को चेक किया। उनका ये कहना था कि वज़ीर आला पंजाब के विजन के मुताबिक तमाम दरबारों के लिए जो फ़ंड्स मुहैया किए गए उनकी तोसी का अमल बहुत जल्द शुरू हो रहा है। जबकि दाता दरबार के हवाले से उनका ये कहना था कि तोसी दिसंबर तक मुकम्मल कर ली जाएगी। जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो बहुत जल्द मुकम्मल हो जाएगा। इसके अलावा उनका ये कहना था कि जो यहाँ के गार्ड्स हैं उनकी तनख्वाहों के हवाले से जब उनसे पूछा गया कि उन्हें तनख्वाहें 25,000 रुपये माहाना दी जाती हैं, उस पर उन्होंने कहा कि मैं इस पर भी गौर कर रहा हूँ और तमाम जितने भी मुलाजमीन औकाफ के हैं या वो डेली वेजेस के उनकी तनख्वाहों के हवाले से भी पंजाब हुकूमत और बिलखुसूस महकमा औकाफ जो है वो बहुत जल्द कानून साजी करेगा और उनको उनके हक अदा किए जाएंगे। जबकि दाता दरबार मस्जिद के मरकज़ी इमाम जौन से हैं रमज़ान सियालवी जौन से वो रात गए दुआ करवाएंगे, जिसमें मुख्तलिफ कहा जा रहा है कि पंजाब कबीना के वज़रा शामिल होंगे। इसी तरह पंजाब हुकूमत और सेक्रेटेरिएट के आला अफसरान भी मुतवक्का तौर पर शामिल हो सकते हैं। इस हवाले से लाहौर पुलिस ने सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम दिए हैं, जिसमें 25 DSP हैं, 6 SPs हैं, 82 के करीब SHOs हैं। तमाम दाखिली और खारजी रास्तों पर खारदार तारें लगाई गई हैं और वॉक थ्रू गेट्स के ज़रिए ज़ायरीन को दाखिला दिया जा रहा है। आज रात स्पेशली तौर पर लाहौर पुलिस को इंस्ट्रक्शन है कि जब तक ज़ायरीन वापस नहीं चले जाते उस वक्त तक कोई भी अफसर अपना पॉइंट खाली नहीं करेगा, जिसकी मॉनिटरिंग DIG ऑपरेशन और IG पंजाब खुद कर रहे हैं। जबकि CCTV कैमरों की मदद से तमाम जितने भी उर्स की तकरीबात हो रही हैं, जहाँ जहाँ पे भी ज़ायरीन मस्जिद के अंदर बाहर मौजूद हैं, उनकी भी मॉनिटरिंग की जा रही है। जी आपका शुक्रिया अली। मस्तूई महंगाई ने अवाम का जीना दोभर कर दिया। सरकारी रेट लिस्टें नजरअंदाज, पोल्ट्री, मस्तूआत, सब्जियां और फल महंगे दामों पर फरोख्त किए जा रहे हैं। इंतजामिया ब्लैक मार्केटिंग के सदेबात में नाकाम है। रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल कादिर। खुद साख्ता महंगाई अवाम की दोहाई, सरकारी रेट लिस्टें नजरअंदाज, अशिया जरूरिया की महंगे दामों फरोख्त जारी है। इंतजामिया गरां फरोशी पर काबू पाने में नाकाम दिखाई दे रही है। ब्रायलर गोश्त की फी किलो सरकारी कीमत 595 रुपए बरकरार, ताहम मार्केट में साफी ब्रायलर गोश्त 720 रुपए फी किलो बेचा जा रहा है। फार्मी अंडे 289 रुपए की बजाय 300 रुपए फी दर्जन फरोख्त किए जा रहे हैं। परचून में प्याज 100 रुपए, टमाटर 120, लहसुन 380 रुपए फी किलो है। अदरक 620, देसी टिंडे 300 रुपए, भिंडी और करेले 200 रुपए फी किलो हैं। फूल गोभी, घिया कद्दू और शलजम 150, शिमला मिर्च 260 रुपए फी किलो में दस्तयाब है। अरबी 120 रुपए, गाजर चाइना 180, घिया तोरी 140 रुपए फी किलो बेची जा रही है। फलों में सेब दर्जावल 420, गरमा 220 रुपए फी किलो है। आड़ू और आम दर्जावल 400 रुपए फी किलो फरोख्त किए जा रहे हैं। केले दर्जावल 260 रुपए फी दर्जन तक बेचे जा रहे हैं। शहरी कहते हैं घर का किचन चलाना मुश्किल हो चुका है। कम आमदनी वाले हैं वो तो सोच भी नहीं सकते, वो तो सब्ज़ी का भी नहीं सोच सकते। सब्ज़ी भी फल के करीब ही रेट हैं उसके सारा, वो तो इसी तरह ही है बस। यानी अगर किसी के घर के 8-10 बच्चे हैं और वो 2 मियाँ बीवी हैं तो उन पहले वो फ्री होके वो 2 किलो ये दे दें, 1 किलो ये दे दें। अब वो हर चीज़ में यही करते हैं, चलो बस बस बस, बस एक की फुल बड़ा है। कीमतें एक जैसी किसी की भी नहीं है, किसी की भी नहीं है। किसी का 5-10 रुपये ज़्यादा है, किसी का कम है, किसी का लेवल है, ज़्यादा नहीं। जिसके बाद भी खड़े उसका अपना अपना रेट है। सरकारी निर्खनामों पर अमल दरामद न होने से अवाम को महंगाई का दोहरा बोझ बर्दाश्त करना पड़ रहा है। कैमरामैन अदनान हसन के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। पंजाब प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड का 19वां इजलास मुख्तलिफ सेक्टर्स की तरक्याती स्कीमों के लिए 96 अरब रुपए के फंड्स की मंजूरी। इजलास की सदारत चेयरमैन PND बोर्ड डॉक्टर नईम रऊफ ने की। गुरुद्वारों, चर्च और मंदिरों की ताज़ीन और आयश के लिए 1 अरब 50 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए। ये रिपोर्ट देखिए। सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी के इजलास में खानेवाल कामों की बिहाड़ी और वजीराबाद के लिए फंड्स जारी हुए। सीवरेज और सैलाबी पानी के निकास को बेहतर बनाने के लिए 22 अरब 47 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई। रावलपिंडी, फैसलाबाद, गुजरांवाला, लाहौर, गुजरात, मुल्तान और दीगर शहरों में मॉडल विलेजेस के क्याम के लिए 72 अरब रुपए के फंड्स की मंजूरी दी गई। मंजूर शुदा फंड से DG खान, सरगोदा, भावलपुर, लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान, गुजरांवाला और साहिवाल में भी मॉडल विलेजेस बनाए जाएंगे। इजलास में सेक्रेटरी PND रफाकत अली, चीफ इकोनॉमिस्ट मसूद अनवर, मेंबरान और मुतल्लका सेक्टर्स अफसरान शरीक हुए। कैमरामैन फखर अब्बास के साथ मोहम्मद हसन रजा, लाहौर।
न्यूज़। बीजिंग अंडरपास को फूलों और शजरकारी के पायलट प्रोजेक्ट के लिए मुंतखब कर लिया गया। पीएचए और टीपा की मुश्तरका टीम ने काम शुरू कर दिया। मंसूबों के तहत कंट्रैक्ट की बजाय कुदरती खूबसूरती पर तवज्जो दी जा रही है। ये रिपोर्ट देखिए। वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज का शहर की खूबसूरती और दिलकशी बढ़ाने का अज़म। बीजिंग अंडरपास का फूलों और शजरकारी के पायलट प्रोजेक्ट के लिए इंतखाब। पीएचए और टीपा की टीमों ने मंसूबे पर काम शुरू कर दिया। महकमा जात का दावा है कि इस मंसूबे से शहर के सब्जा अफजाई प्रोग्राम को एक नया मॉडल मिलेगा। कामयाब होने पर प्रोजेक्ट को किनार रोड के दीगर अंडरपासेस तक बढ़ाया जाएगा। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने पीएचए को ये पायलट प्रोजेक्ट 15 रोज में मुकम्मल करने का टास्क दिया है। दूसरी जानिब तामीराती सरगर्मियों के दौरान कुछ मसाइल भी सामने आ रहे हैं। बिल्डिंग मटीरियल सड़क पर फेंके जाने से सफाई का निजाम मुतासिर हो रहा है। काम के मकाम पर हिफाजती कोन्स और वाज़ेह साइन बोर्ड्स की कमी की निशानदही भी की गई है। इंतजामिया का कहना है कि फील्ड टीमों की रफ्तार और मयार दोनों यकीनी बनाने की हिदायत दी गई है। मंसूबे की कामयाबी पर ये मॉडल किनार रोड के दीगर अंडरपासेस तक तौसी पाएगा। ऑरेंज ट्रेन मंसूबे के पैकेज 1 में एलडीए और ठेकेदार के दरमियान अदायगी का बड़ा तनाज़ा खड़ा हो गया। 3 अरब 29 करोड़ रुपए की अदायगी रोकने का फैसला। एलडीए ने कानूनी मामलात के हल तक अदायगी मौखर कर दी। रिपोर्ट कर रहे हैं ज़ैनुल आबिदीन। ऑरेंज ट्रेन प्रोजेक्ट पैकेज 1 कॉन्ट्रैक्टर को 3 अरब 29 करोड़ रुपए की अदायगी का तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। एलडीए ने तमाम कानूनी और माली मामलात हल होने तक अदायगी मौखर कर दी। वर्किंग पेपर के मुताबिक पैकेज 1 के लिए 2015 में एलडीए ने हब कंस्ट्रक्शन सर्विसेज के साथ मुआहिदा किया। ताहम अगले ही साल लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म इम्तना के बायस तामीराती काम 20 माह तक रुका रहा। ठेकेदार की जानिब से 6 मुख्तलिफ तनाज़ात अदालतों और मुतल्लिका फोरम्स में उठाए गए। बाज़ मामलात पर फैसले हो चुके जबकि कई अब भी ज़ेर समाअत हैं। 3 अप्रैल 2023 को कॉन्ट्रैक्टर ने एलडीए को एक मुफाहमती पेशकश की, जिसका जायजा लेने के लिए गवर्निंग बॉडी ने एक आला सतह की कमेटी कायम की। कमेटी ने तमाम पहलुओं का जायजा लेने के बाद मुफाहमत के केसेस को मुस्तरद करने की सिफारिश की, जिसे गवर्निंग बॉडी ने मंजूर कर लिया। एलडीए हुक्काम का कहना है कि जब तक अदालतों और मुतल्लिका फोरम से हतमी फैसला नहीं आ जाता, किसी किस्म की मजीद कार्रवाई या अदायगी से गुरेज किया जाएगा। मसरूफ तरीन शाहराह फिरोजपुर रोड के मरम्मत और बहाली का प्लान तैयार। 2 बरस से सिर्फ पैच वर्क से काम चलाया जा रहा है। एलडीए ने आइंदा बजट में मंसूबे को शामिल करने का फैसला कर लिया। मंसूबा मंजूर होते ही शहर के सबसे बड़े ट्रैफिक कॉरिडोर पर तामीराती काम का आगाज होगा। रिपोर्ट कर रहे हैं ज़ैनुल आबिदीन। फिरोजपुर रोड की मुकम्मल मरम्मत और बहाली का नया मंसूबा तैयार। एलडीए ने 2.5 अरब रुपए की लागत से मंसूबे को बजट 2025-26 में शामिल करने की तजवीज़ दे दी। ये मंसूबा पहली बार 2023 में पेश हुआ मगर मंजूरी न मिल सकी। गुज़श्ता 2 बरसों से यहाँ सिर्फ पैच वर्क से काम चलाया जा रहा है मगर सड़क की हालत बदस्तूर ख़राब है। मंसूबे के तहत किनाल रोड से गजुमता तक दोनों जानब फिरोजपुर रोड की मुकम्मल मरम्मत और बहाली की जाएगी। फंड्स एलडीए के ज़ाती वसाइल से फ्राहम किए जाएंगे। टीपा के ट्रैफिक सर्वे के मुताबिक फिरोजपुर रोड लाहौर की सबसे ज़्यादा मसरूफ शाहराह है, जहां शहर का सबसे ज़्यादा ट्रैफिक रश रिकॉर्ड किया जाता है। एलडीए का कहना है कि मंसूबा मंजूर होते ही रवा माली साल में बड़े पैमाने पर मरम्मत और बहाली काम का आगाज कर दिया जाएगा। कैमरा टीम के हमरा ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। स्टेट बैंक की जानिब से जश्न मार्क हक के मौके पर 75 रुपए के यादगारी सिक्के का इजरा। 75 रुपए का यादगारी सिक्का खसूसी धाती साख का हामिल है। धाती साख में पीतल, तांबा 79%, जिंक 20% और नकल 1% है। यादगारी सिक्के पर सितारे और हलाल के ऊपर सिक्के के किनारे के साथ साथ उर्दू में इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अल्फाज कुंदा हैं। सितारे और हिलाल के दाएं और बाएं जानिब बिला तरतीब सिक्के की मालियत जाली अदाद में 75 और उर्दू रस्मुल ख़त में रुपया तहरीर है। पहले रुख पर वसत में उर्दू में मार्का हक और हिंसों में 2025 के अल्फाज दर्ज हैं। सिक्के के बलाए किनारों पर उर्दू में पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद रकम है। सिक्के के पिछले रुख पर 2 लड़ाका तैयारे, बहरी जहाज, मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम उभरे हुए दिखाई देते हैं। तर्जुमान के मुताबिक यादगारी सिक्का स्टेट बैंक बैंकिंग सर्विसेज कॉरपोरेशन के फील्ड दफातर के एक्सचेंज काउंटर्स पर दस्तयाब है। वासा में अफसरान के तकर्रुर और तबादले कर दिए गए। एमडी वासा के अहकाम पर तैनातियों का नोटिफिकेशन जारी किया गया। डायरेक्टर शालीमार टाउन अदिल शरीफ को डायरेक्टर पीएनडी का इजाफी चार्ज दे दिया गया। डायरेक्टर अजीज भट्टी टाउन फैसल खुरम को डायरेक्टर पीएनई का इजाफी चार्ज दे दिया गया। एमडी वासा के अहकाम पर तैनातियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। मुल्की मसनूआत के फ़रोग कमीशन मेरा ब्रांड पाकिस्तान एक्सपो 2025 और फैमिली फेस्टिवल का दूसरा रोज़ शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल कादिर। पाकिस्तान बिजनेस फोरम के ज़ेर एहतमाम 2 रोज़ा मुल्की ब्रांड्स की शानदार नुमाइश के आखिरी रोज़ अवाम की बड़ी तादाद नुमाइश में शरीक हुई।
इस मौके पर शहरियों का कहना था कि मुल्क की ब्रांड्स को फ़रोग देना होगा। मेड इन पाकिस्तान के फ़रोग के लिए इस तरह की नुमाइशों का इनकाद बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान में ऐसी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, ऐसी नुमाइशें, और जो कि पाकिस्तान, मेरा ब्रांड पाकिस्तान जैसे है, और पाकिस्तानी ब्रांड्स को प्रमोट करना चाहिए ताकि पाकिस्तान इकोनॉमिकली भी बहुत आगे जा सके। ये बहुत अच्छा स्टेप लिया इन्होंने, मेरा ब्रांड पाकिस्तान, जिसमें सब छोटे छोटे ब्रांड्स को ना मौका मिला है, वो अपने अपने ब्रांड्स को हाइप दें, उनको कमर्शलाइज करें। मैं तो कहती हूँ कि ये वाले इवेंट्स बार बार होने चाहिए, ये बहुत बेस्ट है हमारे पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए भी। स्टॉल होल्डर्स का कहना था कि मेरा ब्रांड पाकिस्तान एक्सपो में आकर शहरी हैरान हैं कि पाकिस्तान में आलमी मयार की अशिया बन रही हैं। लोग जो हैं स्टॉल्स विजिट करते हैं और लोगों को पता चलता है कि पाकिस्तान में कौन कौन सी कंपनियां काम कर रही हैं, कौन कौन सी प्रोडक्ट्स यहाँ बिक रही हैं। बेशुमार लोग हैं जो जिनको पता ही नहीं कि पाकिस्तान में क्या क्या चीज़ें बन रही हैं। लोग इम्पोर्टेड चीज़ों के पीछे पड़े होते हैं, लेकिन पाकिस्तान की चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी चीज़ें हैं और सारे ब्रांड्स अच्छे हैं। डीजी फूड अथॉरिटी आसिम जावेद ने मेरा ब्रांड पाकिस्तान एक्सपो में लगे स्टॉल्स का विजिट किया और कहा कि एक्सपो में मुल्की ब्रांड्स और मुकामी मसनूआत के स्टॉल्स लगाए गए हैं। नुमाइश में 2 लाख से ज़ायद अफराद की शिरकत बड़ी कामयाबी है। अपना ब्रांड पाकिस्तान को, मेरा ब्रांड पाकिस्तान को पूरी दुनिया के अंदर मुतारिफ कराया जाए। मैं ये समझता हूँ कि इन लोगों के साथ मिलें और पाकिस्तान की प्रोडक्ट्स को दुनिया भर के अंदर जो है मुतारिफ करा के पाकिस्तान के लिए अच्छा ज़र मुबादला जो है वो कमाने में अपना जो है ना वो किरदार अदा करें। मेरा ब्रांड पाकिस्तान एक्सपो में लियाकत बलोच, अमीरुल अजीम और नईम मीर समेत सियासी, समाजी और दीगर कारोबारी शख्सियात ने भी विजिट किया। कैमरामैन बाबर रियाज के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। साबिक निगरान वफाकी वज़ीर डॉक्टर गौहर अज्जाज की जानिब से नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को मार्के हक में कामयाबी पर मिलने वाले एज़ाज़ात पर लेक सिटी लाहौर में तकरीब का इनेकाद किया गया। चेयरमैन दुनिया मीडिया ग्रुप मियां आमिर महमूद ने इस तकरीब में ख़ुसूसी शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कहना था कि मुल्क में सियासी तब्दीलियों की वजह से मौशी पॉलिसियों में तब्दीली नहीं आनी चाहिए। गैर मुनासिब सियासत की वजह से सबसे बड़ा नुकसान कौम का हुआ है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। साबिक निगरान वफाकी वज़ीर डॉक्टर गौहर एजाज की जानिब से लेक सिटी लाहौर में डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को मिलने वाले एजाज़ात के एजाज़ में तकरीब सजी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक, चेयरमैन दुनिया मीडिया ग्रुप मियां आमिर महमूद की तकरीब में खुसूसी शिरकत। साबिक वफाकी वज़ीर डॉक्टर गौहर एजाज, पैटर्न इन चीफ FPCCI SM तनवीर, सदर FPCCI आतिफ इकराम और दीगर शख्सियात भी तकरीब में शरीक हुई। मार्के हक की फतह पर कौम को मुबारकबाद पेश करते हुए नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा कि मैंने बड़ी कोशिश की कि मिसाक़े मईशत हो जाए। हम दुनिया की 24वीं बड़ी मईशत बनने जा रहे थे। 2017 में ड्रामा रचाया गया और मईशत को नुकसान पहुँचाया गया। गैर मुनासिब सियासत की वजह से सबसे बड़ा नुकसान कौम का हुआ। पहले की तरह अब भी दहशत गर्दी का कला कमा करके दिखाएंगे। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने भारत के गुरूर को खाक में मिला दिया। मैं समझता हूँ कि हमारी बड़ी बदकिस्मती है कि पाकिस्तान में ये बस्ट और बूम का जो साइकिल है और जो कॉन्स्पिरेसीज और एक अनरीजनेबल एक जो मैं कहूँगा गैर मुनासिब सियासत की नज़र होता रहा है, उसमें सबसे बड़ा नुकसान पाकिस्तान की कौम का हुआ है। साबिक निगरान वफाकी वज़ीर डॉक्टर गौहर एजाज का इस मौके पर खिताब करते हुए कहना था कि इसहाक डार और मोहसिन नकवी को सितारा इम्तियाज मिलना बड़ी खुशी की बात है। चाहता हूँ हुकूमत बिजनेस कम्युनिटी को साथ लेकर चले। बिजनेस कम्युनिटी की कोई चीज़ डार साहब के पास लेके जाओ तो डार साहब जो है ने आज तक कभी मुझे सवाल नहीं किया, बल्कि हमेशा डार साहब ने सिर्फ ये पूछा है कि गौहर इस सारी की सारी समरी भी बन के आई है, और ये एक दफ़ा नहीं, हमारे मुल्क की खिदमत के लिए हमें साल से हमारा ये रिश्ता है। और जो मुल्क की खिदमत जिस तरीके से, शायद आपको इल्म भी नहीं कि जो कुछ इन्होंने मुल्क की फाइनेंस, मुल्क की कॉमर्स और आज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, फॉरेन अफेयर्स में जिस तरह काम कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक का तकरीब से खिताब करते हुए कहना था कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। पाकिस्तान का दिफा नाकाबिल तस्खीर है। मुसल्लह अफवाज ने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। जो जंग हिंदुस्तान के साथ हुई, जिसके अंदर हमारी दफाई अफवाज ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की सरबराही में जिस तरह साबित किया कि पाकिस्तान की दिफा नाकाबिल तस्खीर है, मेरी दुआ है कि हम अपनी हुकूमत के साथ खड़े होके अपने अपने तौर पे किरदार अदा करते हुए
पाकिस्तान को माशी महाज पे उसका मकाम दिलवा सकें जो उसका हक बनता है। एसएम तनवीर अपने खिताब में बोले कि इस साल जंग जीतने ने जश्न आज़ादी की खुशियाँ दोबाला कर दी। पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान और हुकूमत के साथ खड़ी है। सेलिब्रेट तो हर साल की हमने जश्न आज़ादी, सच बताऊं तो ये नॉर्मल से ज्यादा खुशी हो रही है। ये जो जंग हुई, जिस तरह से पाक फौज लड़ी, जिस तरह से दुश्मन को ज़िच किया गया, इसमें हमें भी कदर पड़ी कि आज़ादी क्या चीज़ है। पाकिस्तान पूरी कौम अपनी गवर्नमेंट के साथ खड़ी है। डॉक्टर साहब, पूरी कौम फौज के साथ खड़ी है सर। सदर FPCCI आतिफ इकराम शेख ने वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की मुल्की खिदमात को सराहा। साबिक वफाकी वज़ीर गौहर एजाज ने नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को शील्ड से नवाजा और गुलदस्ता पेश किया। तागाम इम्तियाज मिलने के बाद प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब सैयद फरहाद अली शाह की प्रोसिक्यूशन ऑफिस आमद। फरहाद अली शाह का ऑफिस पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल किया गया। ये रिपोर्ट देखिए। कानून के शोबा में बेहतरीन खदमात पर प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब सैयद फरहाद अली शाह को तमगा इम्तियाज से नवाजा गया है। सैयद फरहाद अली शाह प्रोसिक्यूशन ऑफिस पहुंचे तो एडमिन डायरेक्टर मोहम्मद अरशद फारूकी समेत दीगर अफसरान और मुलाजमीन ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। तमगा इम्तियाज मिलने की खुशी में प्रोसिक्यूटर जनरल ने केक काटा। इस मौके पर फरहाद अली शाह ने कहा, ये तमगा इम्तियाज मुझे नहीं, प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट को दिया गया है। प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट के तमाम अफसरान की मेहनत का ही नतीजा है कि पहली बार पंजाब की किसी प्रोसिक्यूटर जनरल को तमगा इम्तियाज से नवाजा गया और ये मेरे लिए भी बड़े एजाज की बात है। प्रोसिक्यूशन ऑफिस के तमाम अफसरान और मुलाजमीन ने प्रोसिक्यूटर जनरल के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और उनके साथ ग्रुप फोटो भी बनवाया। लाहौर तालीमी बोर्ड में मार के हक की मुनासबत से तकरीब का एहतमाम। अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियों, जुर्रत और बहादुरी को खराज तहसीन पेश किया गया। लाहौर तालीमी बोर्ड में मार का हक के उन्वान से तकरीब सजाई गई। ब्रिगेडियर रिटायर्ड नादिर मीर सितारा इम्तियाज और कर्नल रिटायर्ड साजिद हमीद ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। तकरीब में सेक्रेटरी लाहौर बोर्ड रिजवान नजीर और कंट्रोलर इम्तिहानात तौसीफुल रहमान भी शरीक हुए। ब्रिगेडियर रिटायर्ड नादिर मीर ने कहा कि आज़ादी खुद नहीं मिलती, इसे छीनना पड़ता है। पाकिस्तान ने 1 घंटे में भारत को शिकस्त देकर दुनिया को हैरान कर दिया। कर्नल रिटायर्ड साजिद हमीद ने कहा कि हमारी बहादुर अफवाज ने दुश्मन का डट कर मुकाबला किया। भारत का फौजी बजट बड़ा होने के बावजूद हमने हर महाज पर उसे शिकस्त दी। सॉवरेनिटी इज नॉट गिवन, इट इज टेकन। यानी आपको अपनी आज़ादी छीननी पड़ती है या लेनी पड़ती है या बनानी पड़ती है। 1 घंटे के अंदर विद इन 1 आवर 40-50 मिनटों में पाकिस्तान एयरफोर्स ने 6-7 की रात जो थी उसके अंदर सिर्फ भारत को शिकस्त नहीं दी, यानी इंडियन एयरफोर्स को, बल्कि तारीख का एक नक्शा बदल दिया। अल्हम्दुलिल्लाह 4 दिनों के अंदर आपकी लैंड फोर्स को ज़रूरत ही नहीं पड़ी कि जाके तो ज़मीन के ऊपर किसी का कब्जा करे। एयर में रही, एयर में सॉर्ट आउट किया और आज ये हालत है कि इंडिया जो हमसे 6 गुना ज़्यादा ताकतवर है, जिसका बजट हमसे 10 टाइम्स मोर है एज फार एज द डिफेंस बजट इज कंसर्न। सेक्रेटरी लाहौर बोर्ड रिजवान नजीर ने कहा कि पाक फौज की कुर्बानियों को हमेशा याद रखा जाएगा। मई के महीने में जो 10 मई को एक मार्का हुआ, उसका एक इतना असर आया कि पूरी दुनिया में पैराडाइम शिफ्ट हो गई। पाकिस्तान कौम, पाकिस्तान नेशन एक एक बहुत बड़ी पावर बन के उभरी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें इज़्ज़त दी है। तो उसी पैटर्न पे, उसी हमारी अफवाज को सलाम पेश करने के लिए हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, ताकि हम इसको अपने आने वाले बच्चों को भी ये बता सकें कि ये जो है एक बहुत बड़ा मार्का था। तकरीब में मुकर्रीन ने वाज़ेह किया कि जब कौम और फौज एक हों तो कोई भी दुश्मन मैदान में नहीं ठहर सकता। फिलहाल इतना ही।